So today we are going to start with ANS Pharma in continuation of ANS Pharma lectures. Today we are dealing with anticholinergic drugs. First of all, let's see what are the actions that anticholinergic drug possesses. First of all, we have seen that cholinergic drugs are going to do the effect of dumbbells. In opposite to anticholinergic drugs, what are the anticholinergic drugs will do? These will show action opposite to dumbbells. That is going to be opposite to dumbbells. We'll see that. First of all, opposite to dumbbells, what is the dumbbell meaning? Here D stands for diarrhea. Okay, so in opposite to diarrhea we have constipation over here. Number one is constipation. Constipation means what? Constipation का मतलब होता है पेरिस्टालसिस का मूवमेंट कम होना. ठीक है, और ये जो ड्रग है वो कौन सा करेगा? The drug name is atropine. So atropine is a drug that is used for treating non-infective diarrhea. Non-infective diarrhea. Second one is the retention of urine. Second action by anticholinergic drugs is the retention of urine. रिटेंशन ऑफ यूरिन, वहां पर यूरिन का रिटेंशन है, तो इस वजह से यहाँ पर ब्लैडर मसल जो है वो रिलैक्स करेगा. Bladder muscle is going to be relaxed over here in this case. And this particular drugs that I'm going to tell you right now, these drugs are going to, there are three drugs over here, that is oxybutynin, derifenacin and solifenacin. Oxybutynin, derifenacin and solifenacin. Derifenacin and solifenacin. These are the three drugs, number 1, number 2 and number 3. These are going to do retention of urine, means that is going to be the bladder is going to be in contracted state when the patient ingest ingest these three drugs, that is namely oxybutynin, derifenacin and solifenacin. So these three drugs will going to treat drug urge incontinence or overactive bladder. Number 3 for the actions opposite to dumbbell is the mydriasis. Cholinergic drugs were doing meiosis, and here in the anticholinergic drugs the action will be mydriasis with some more other various activities that is going to be attached with loss of accommodation, that is cycloplegia. So here there are few drugs that I'm going to write over here. Number 1 is one case drug, that is atropine and homatropine. The meaning of these drugs are very quite similar, as well as naming of it is very similar. Homatropine is the drug. Homatropine is the drug. These drugs are going to will be further subcategorized into two things, that is long acting mydriatics and short acting mydriatics. Number 1 is long acting mydriatics and number 2 is short acting mydriatics.
What are the names of short-acting mydriatics are cyclopentolate and tropicamide. Cyclopentolate and tropicamide. Atropine and homatropine are the long-acting mydriatics. Along with these are high-efficacy cyclopagics. Where we are gonna use these kinds of medicine? Number one category will be in the treatment of amblyopia, anterior uveitis, and in the high efficacy cyclopagics, we'll use these kind of medicine in children with refractive error. शॉर्ट एक्टिंग मिड्रियाटिक्स में दो कैटेगरीज होगी, ठीक है। ये दोनों जो टॉपिकामाइड और साइक्लोपेंटोलेट है वो हम यूज करेंगे इन द सर्जरीज, जैसे कि फंडोस्कोपी या फिर आई एग्जामिनेशन में जैसे कि रेटिनोस्कोपी में वहां यूज कर सकते हैं हम इसे। तो these are the medicine that we are going to use in eye examination, namely retinoscopy and fundoscopy. Along with this, cyclopentolate and topicamide are low efficacy cyclopagics. तो ये जो है वो हम हाई एफिशिएंसी हम चिल्ड्रंस में यूज करते हैं, लो एफिकेसी वाला हम एडल्ट पेशेंट्स में यूज करेंगे। एडल्ट पेशेंट्स दोज हु आर हैविंग रिफ्रैक्टिव एरर वहां पे। Let's write it over here. Adult patient for refractive errors. So these are the subcategorization of the medicine that will be acting in refractive errors of children, those adult patient who are having refractive error, वहां पर हम लोग साइक्लोपेंटोलेट और टॉपिकामाइड यूज करेंगे, एंड एट्रोपिन होमेट्रोपिन यूज करेंगे। ये लॉन्ग एक्टिंग म्यूट्रियाटिक्स है, तो एम्ब्लायोपिया एंड ऑफ एंटेरियर यूबेटिस एंड हाई एफिकेसी साइक्लोपेजिक्स इन द चिल्ड्रंस विथ रिफ्रैक्टिव एरर्स। इस पे क्वेश्चन जो आता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेट्स सी। एट्रोपिन इज द मेडिसिन जो कि हम लोग यूज करते हैं दो जगह पे, जहां पर एम्ब्लायोपिया हुआ या फिर चिल्ड्रंस विद रिफ्रैक्टिव एरर्स। बट ये जो एट्रोपिन है वो लॉन्गेस्ट एक्टिंग होता है, लॉन्गेस्ट एक्टिंग मिड्रियाटिक्स। और शॉर्ट एक्टिंग की अगर हम बात करें तो वो होगा ट्रोपिकामाइड। तो हाई एफिकेसी वाला ये है सबसे इम्पोर्टेंट, और जो लो एफिकेसी वाला है वो ये है, ठीक है। तो दो, हालांकि दोनों ही एफिकेसी में ज्यादा ही है, बट वी आर डीलिंग विथ कंपैरेटिव, ठीक है। तो कंपैरिजन अगर करते हैं तो ट्रोपिकामाइड शॉर्टेस्ट एक्टिंग मिड्रियाटिक होता है। Now let's move on to the fourth action, which is opposite to dumbbells, that is ब्रोंकोडायलेशन। वहां पर कोलिनर्जिक ड्रग ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कर रहा था, यहाँ पर ब्रोंकोडायलेशन होगा, ठीक है। So let's write it over here. Number 4 action opposite to dumbbells is bronchodilation.
ब्रोंकोडायलेशन क्यों कराना है? क्योंकि जिस पेशेंट को सीओपीडी यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है या फिर एज्मा है, वहां पर हम यूज करते हैं ये सारी चीजें। ब्रोंकियल एज्मा या एज्मा आप लिख सकते हो, वहां पर हम ये मेडिसिन यूज करेंगे। तो मेडिसिन का नाम क्या है? लेट्स राइट इट ओवर हियर। दीज मेडिसिन आर number 1 further subcategorized into two, that is sama and lama. As the name says, it is sama. For S stand for short acting, M stand for muscarinic, and A stand for antagonist. Okay, so this is short acting muscarinic antagonist, और जो लामा है वो लॉन्ग एक्टिंग मस्क्रेनिक एंटागोनिस्ट है। ठीक है, लॉन्ग एक्टिंग मस्क्रेनिक एंटागोनिस्ट। तो कौन कौन से मेडिसिन है वो हम यहाँ लिखते हैं। सबसे पहले सामा में है इप्राट्रोपियम। इप्राट्रोपियम साइड इफेक्ट will be dry mouth, and lama में we have tiotropium। साइड इफेक्ट यहाँ पर ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं होता, तो लेट्स नॉट राइट इट ओवर हियर। तो पर्टिकुलरली जो लामा है वो एजमा में नहीं सीओपीडी में दिया जाता है मोस्टली। तो दिस इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर lama is the drug of choice for COPD, that is chronic obstructive pulmonary disorder. Next we have very important, very recent PYQ in the INISET and as well as NEET PG. We have another action which is opposite to dumbbells, that is tachycardia, which means that it will going to increase the heart rate as well as conduction of the heart. Drug of choice over here is again atropine. Why atropine is given? To those patients who are having sinus bradycardia, as well as it is the drug of choice for heart blockage. Next action which is opposite to dumbbells is glandular secretion, that are going to decreased over here. Glandular secretion. In the cholinergics, the glandular secretion were increasing. Here, glandular secretion is decreasing. What are the medicines? Again, atropine and glycopyrrolate. Atropine and glycopyrrolate. ग्लैंडुलर सेक्रेशन को कम करता है। तो ग्लैंडुलर सेक्रेशन क्यों कम करना होता है? जब भी हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं तो हमें ये क्वेश्चन हमें हमारे मन में हमेशा आना चाहिए whenever we are studying pharma, क्योंकि वहां पर why and how that is very important। अगर आप यही समझ गए तो यानी कि आपको मैक्सिमम फार्मा समझ में आ जाएगा। ग्लैंडुलर सेक्रेशन यहाँ पर कम हो रहा है, यानी कि ये यूज होगा कब? जब हम सर्जरीज करते हैं एज अ प्री एनेस्थेटिक ड्रग। ओके, तो atropine and glycopyrrolate will use as a pre-anesthetic drug before surgeries. atropine में CNS साइड इफेक्ट होता है, हमेशा याद रखना आप। और होम एट्रोपिन में ग्लाइकोपैरोलेट में कोई CNS साइड इफेक्ट नहीं है। There will be no CNS side effect in the glycopyrrolate, which is very important. And secondly, ग्लाइकोपैरोलेट का स्ट्रक्चर कई बार पूछा गया है PYQ में भी। इसका स्ट्रक्चर क्वार्टिनरी होता है।
नेक्स्ट अप इज द एसिडिक सेक्रेशन। वहां पर एसिडिक सेक्रेशन ज्यादा हो रहा था, यहाँ पर कम होगा। तो एसिड सेक्रेशन कम कब कराना है और क्यों कराना है? जब पेप्टिक अल्सर्स हो जाता है, पैराइटल सेल्स में पेप्टिक अल्सर डिजीज हो जाता है, तो हम एक मेडिसिन यूज करते हैं विच इज पायरेनज़ेपाइन। Pyrazapine is the medicine which is which we use in treatment of, which is a drug of choice for peptic ulcer disease, which is PUD, peptic ulcer disease. Also, यहाँ पर एसिड सेक्रीशन डिक्रीज्ड हो जाएगा, ठीक है, जब हम ये मेडिसिन लेंगे तो। क्योंकि कोलिनर्जिक्स में आपको याद होगा, जब मैं मस्क्रेनिक 1 2 3 पर आ रही थी, तो पिछले वीडियोस में अगर आपने वो रेफर नहीं किया तो प्लीज आप उस वीडियो को जाके देखिए। M1 में वहां पर जो था, सबसे पहला एक्शन जीआईटी में पैराइटल सेल्स में इंक्रीमेंट ऑफ एसिड सेक्रेशन था। सेकेंड जो एक्शन था वो था सीएनएस में ट्रेमर्स का। तो यहाँ पर N1 रिसेप्टर को पायरेनज़ेपाइन क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, सो दैट पेप्टिक अल्सर डिजीज में एसिड सेक्रेशन कम हो और पेशेंट को रिलीफ मिले। नेक्स्ट अप इज द सीएनएस एक्शन। ऑफ कोर्स यहाँ पर जो मेडिसिन है वो हम लिखते हैं, नंबर 1 मेडिसिन इज द बेंजहेक्सोल। बेंजहेक्सोल, इसका स्ट्रक्चर जो बायोकेमिस्ट्री में होता है दैट इज ट्राई हेक्सी फिनाइडिल। अगेन मैंने बताया कि सीएनएस में ट्रेमर्स करता है, तो यहाँ पर ये क्या करता है, M1 रिसेप्टर को कर देगा ब्लॉक। M1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा सीएनएस में, तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, ट्रेमर्स जो होगा वो कम हो जाएगा, ट्रेमर्स कम हो जाएगा। एंड इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस, बेंजहेक्सोल इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसनिज्म। पार्किंसनिज्म, ठीक है। बेंजहेक्सोल इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसनिज्म, ठीक है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। इसको मैं इरेज कर देती हूँ लिटिल बिट। नेक्स्ट मेडिसिन जो अगेन यहाँ पर इन कंटिन्यूएशन ऑफ इट हम यहाँ पर लिखते हैं, दैट इज हायोसिन। हायोसिन इज द मेडिसिन। हायोसिन क्या करता है, ये मोशन सिकनेस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होता है, कैन बी यूज्ड एज ए स्किन पैच बिहाइंड द ईयर। मोशन सिकनेस में हायोसिन is plays a very crucial role and can be used as a skin patch behind the ear. और हायोसिन का नंबर 1 ड्रग ऑफ चॉइस मोशन सिकनेस में। सेकेंड ड्रग ऑफ चॉइस जब भी हमें जो प्रिजनर्स हैं उसे सच उगलवाना होता है, तो वो झूठ बोलते हैं, झूठ ना बोले तो उसको, उस टेस्ट को बोलते हैं हम लोग नार्को एनालिसिस टेस्ट। तो नार्को एनालिसिस में एज अ ट्रूथ सीरम भी हायोसिन यूज होता है। इन द नार्को एनालिसिस हायोसिन विल बी यूज्ड एज अ ट्रूथ सीरम। हायोसिन का स्ट्रक्चर अगेन वहां पर ट्राइहेक्सीफिनाइलडिल था, यहाँ पर हायोसिन का स्ट्रक्चर है स्कोपोलामाइन। ये आप याद रखना, ये कई बार पीवाईक्यू में भी आया हुआ है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कहाँ पर हम लोग ये सारे ड्रग्स वॉट एवर वी हैव स्टडीड अबव वो हम यूज नहीं करेंगे ऑफ एंटीकोलिनर्जिक्स। नंबर 1 इज द, ऑफ कोर्स अगर कोई भी नोन केस ऑफ एंगल क्लोजर ग्लाउकोमा है, नोन केस ऑफ
नोन केस ऑफ एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, या फिर वहां पर क्या होगा, जब हम अगर हमें पता है नोन केस ऑफ एंगल क्लोजर ग्लूकोमा है, तो वहां पर मिड्रियासिस हो जाएगा, ठीक है। दीज मेडिसिन विल काउज मिड्रियासिस, दैट इज क्लोजर ऑफ एंगल, तो हम यहाँ पर ये यूज नहीं करेंगे। अभी मैं रिकॉल कराती हूँ सारी चीजें, सो दैट आपको अच्छे से रिकॉल हो जाए और रिवाइज भी हो जाए, क्योंकि ये सारे ड्रग्स क्या करेंगे, मिड्रियासिस काउज कर देंगे, यानी कि क्लोजर ऑफ एंगल। Let's revise it. In this video, we have studied about anticholinergic drugs. Very important thing. Actions क्या anticholinergic drugs का, that is opposite to dumbbells. Whatever we had studied in the previous video, just refer to it so that आपको कोई भी confusion ना हो। मैंने बहुत अच्छे से cholinergic drugs और ANS का pharma का इंट्रो वो सारा दिया है, सो दैट आपको एक जेस्ट मिले कि इन फ्यूचर हम क्या पढ़ रहे हैं एएनएस में। वी आर अबाउट टू कंप्लीट एएनएस इन वेरी 2 to 3 लेक्चर्स मोर, ठीक है। इन द अपकमिंग लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर अप ऑल द टॉपिक्स दैट वी हैव नॉट स्टडीड इन द एएनएस। तो एक्शंस क्या है इसका, डंबल्स, अपोजिट टू डंबल्स में पहला है कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन में क्या होगा, पेरिस्टालसिस मूवमेंट कम हो जाता है। तो एट्रोपिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ नॉन इन्फेक्टिव डायरिया। तो अगर किसी पेशेंट को डायरिया हो रहा है बट वो इन्फेक्शन की वजह से नहीं हुआ है, तो कौन सा ड्रग देना है, एट्रोपिन। अगर किसी के ब्लैडर को रिलैक्स करना है, मतलब अर्जेंट कॉन्टिनेंस हो जाए, ओवर एक्टिव ब्लैडर हो जाए, बार बार यूरिनेशन हो रहा है उनको, तो वहां पर कौन कौन से मेडिसिन देंगे, ऑक्सीब्यूटानिन, डैरिफिनासिन एंड सॉलिफिनासिन। Number 3 is the midriasis with loss of accommodation. Very important medicine, that is homatropine and atropine. Second one of this class is cyclopentolate and topicamide. ये क्यों देते हैं, the person those who are having एम्ब्लोपिया, एंटेरियर यूवियाटिस, वहां पर हम लोग देंगे लॉन्ग एक्टिंग मिड्रियाटिक्स। और हाई एफिकेसी साइक्लोपेजिक्स हम चिल्ड्रन को देंगे, क्योंकि वो हाई एफिकेसी, इट रिक्वायर्स हाई एफिकेसी साइक्लोपेजिक, तो वहां पर हम लोग होमेट्रोपिन और एट्रोपिन देंगे। साइक्लोपेंटोलेट और टोपिकामाइड ये जो है शॉर्ट एक्टिंग मिड्रियाटिक्स होता है, ठीक है। वाई वी गिव दीज काइंड ऑफ मेडिसिन, क्योंकि हमें रेटिनोस्कोपी और फंडोस्कोपी में कम देर के लिए इसे ना डायलेट करना होता है इन सारी चीजों को, ठीक है, आईज को। तो उस टाइम पे हम लोग देंगे ये। लो एफिकेसी साइक्लोपेजिक्स एडल्ट पेशेंट्स को देंगे। तो इस पे क्वेश्चन क्या आता है, मेनली जो पीवाईक्यू भी है, एट्रोपिन इज द लॉन्गेस्ट एक्टिंग मिड्रियाटिक्स एंड टॉपिकामाइड इज द शॉर्टेस्ट एक्टिंग मिड्रियाटिक्स। नेक्स्ट वन इज द ब्रोंकोडाइलेशन। ब्रोंकोडाइलेशन क्यों कराना है हमें, क्योंकि जो पेशेंट है एजमा के, सीओपीडी के, वहां पर ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाता है। तो दीज आर द इफेक्ट्स दैट वी हैव टू इनकाउंटर विद दीज मेडिसिन, ठीक है। तो सामा इज द ड्रग जिसके क्लास में इप्राट्रोपियम आता है, बट इसका ड्राई साइड इफेक्ट है ड्राई माउथ। और लामा इज अ ड्रग विच इज लॉन्ग एक्टिंग मस्क्रेनिक एंटागोनिस्ट। टियोट्रोपियम इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सीओपीडी। नेक्स्ट वन इज द टेकिकार्डिया। किस पेशेंट को हमें देना होता है, फॉर साइनस ब्रेडिकार्डिया पेशेंट्स एंड हार्ट ब्लॉकेज पेशेंट। मेडिसिन इज द एट्रोपिन अगेन। ये क्या करता है, हार्ट रेट और कंडक्शन को इंक्रीज कर देगा। सेकेंड वन इज द ग्लैंडुलर सेक्रेशन। ग्लैंडुलर सेक्रेशन में एज अ प्री एनेस्थेटिक ड्रग हम देते हैं ग्लैंडुलर सेक्रेशन को कम करने के लिए। ड्रग ऑफ चॉइस एट्रोपिन एंड ग्लाइकोपाइरोलेट। एट्रोपिन क्या करता है, सीएनएस साइड इफेक्ट कराता है, बट ग्लाइकोपाइरोलेट ऐसा कुछ भी नहीं कराता। ग्लाइकोपाइरोलेट का स्ट्रक्चर क्वाटरनरी होता है। नेक्स्ट इज द डिक्रीमेंट ऑफ एसिड सेक्रेशन। एग्जाम्पल इज पायरेनजापाइन, मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था। मस्क्रेनिक 1 को ये ब्लॉक करके पेप्टिक अल्सर डिजीज को क्योर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द सीएनएस। सीएनएस में पहला मेडिसिन हमने देखा बेंजहेक्सोल, जिसका स्ट्रक्चर होता है ट्राई हेक्सीफिनाइडिल विच इज अ पीवाईक्यू। M1 ब्लॉकर है और सीएनएस एक्शन करेगा ट्रिमर्स को कम करके। इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ड्रग इंड्यूस्ड पार्किनोसिज्म। एंड नेक्स्ट वन इज द hyoscine. Hyoscine is also a scopolamine, drug of choice for narcoanalysis, which is a truth serum test, and motion sickness can be used as a skin patch behind the ear.
नेक्स्ट वन इज द कॉन्ट्राइंडिकेशन। कहाँ हम ये मेडिसिन यूज नहीं करेंगे? अगर कोई पेशेंट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा का नोन केस है, वहां पर हम ये यूज नहीं करते। नोन केस ऑफ एंगल क्लोजर ग्लूकोमा वहां पर हम नहीं करेंगे, क्योंकि उस पेशेंट्स में ये मिड्रियासिस काउज करेगा फर्दर, और फर्दर ज्यादा फिर ड्रॉबैक होगा उस चीज का। So in this video, we have fully covered the anticholinergic drugs. For more such video, please subscribe to the channel. And also in the next video, we are covering more videos like sympathetic system physiology, adrenergic drugs, which is directly acting catecholamines or non-catecholamines, uh, anti-adrenergic drugs, alpha and beta blockers, anti-glaucoma drugs, and most recent PYQs asked. Thank you so much for watching and stay tuned with the channel.